Yeah. I will quickly revise what all we had done in last three classes. We have done three classes till now. So in these three classes, we had done the basic questions of issue of shares, how the entries are passed when the lump sum amount is taken on one call only. So a joint account is opened. What is that account called? That is issue of shares, share application and allotment account. Fine. That is one account you open, and then depending on whether the shares are issued at premium or shares are issued at par, you pass the entries. If shares are issued at premium, then we have to open a separate account which is called security premium reserve. So second entry will be different if the shares are issued on premium. So when you pass the second entry, some entry will be share application and allotment account debit to share capital and to securities premium reserve. In security premium reserve, the amount which you have taken as premium will go. Okay, then we had seen how the shares are issued on when the calls are taken by the companies in parts, like application, allotment, first call, second call, and so on. Okay, so in that case, how the entries are passed, except for the application money, all the money comes after the money gets due. Like first entry only बैंक की entry आएगी, उसके बाद की जितनी भी entries आएंगी, पहले call due होगी. जैसे allotment की entry की बात करूं मैं आपकी, अलॉटमेंट की एंट्री पहले होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी आ जाएगा. इसके बाद बैंक वाली एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. फिर उसके बाद कॉल में भी ऐसा ही होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. And for the second call also same. So only application is the exception where the money comes first. First entry you do bank account debit to share application account. Rest all the entries में what do? First the money gets due and then it comes into bank. Second entry वो होती है. Then हमने देखा था कैसे shares का under subscription होता है and over subscription होता है. Over subscription होता है, so we have three options. We can issue the shares to all the people by doing the pro rata allotment. We can reject some of the shares, or the company may choose to have both the options. जब कंपनी दोनों ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लेती है, मतलब कुछ को रिजेक्ट कर देती है, कुछ का प्रो रेटा अलॉटमेंट कर लेती है, तो एनालिसिस टेबल बनता है. दैट एनालिसिस टेबल की प्रैक्टिस हमने 2 दिन करी थी. एक क्लास में मैंने सिखाया था, आपने मेरा कॉपी किया था. नेक्स्ट क्लास में यू ऑल्सो डिड सम एंड मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू डू इट प्रीटी वेल. ओके, सो आई एज्यूम आप लोगों ने घर पे रिवाइज किया है उसको, तो आज भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं एनालिसिस टेबल की प्रैक्टिस आएगी. ठीक है, सो दैट वी हैड डन. देन लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा था, forfeiture of shares. How forfeiture of shares is done? Forfeiture of shares तभी होता है जब किसी शेयर होल्डर ने कुछ पैसा दिया नहीं. एप्लीकेशन तो ऑलवेज विल बी गिवन ओनली, तभी शेयर्स इश्यू होंगे. ठीक है, सपोज उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी या कॉल मनी नहीं दी और एनी अदर कॉल, अगर एक से ज्यादा कॉल्स होती है, एनी कॉल मनी उसने नहीं दिया, कंपनी will ask that shareholder to pay the money, and even after the notice the shareholder doesn't pay the money, then his or her shares will be forfeited. forfeiture of shares मतलब उसने जितना भी अमाउंट अभी तक पे किया है वो confiscate हो जाएगा, and उसके shares भी will be taken back by the company and it will be later on reissued to someone else. Okay, so when we do the share forfeiture entries, what we do, share capital account, पहली बार share capital account is going to get debited. इससे पहले हर बार share capital account क्या हुआ था, share capital account was getting credited all the time because we were transferring some money over there, whether it is related to application, it is to allotment or to the share calls. लेकिन पहली बार forfeiture की एंट्री करते टाइम हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया था, और शेयर कैपिटल को कितने अमाउंट से डेबिट किया था, जितना कॉल्ड अप मनी था. कॉल्ड अप मनी याद रखना है, क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारी कॉल्स बुलाने से पहले ही किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को हमने forfeit कर लिया है, सो उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड. देन टू कॉल सिनेरियोस. कॉल सिनेरियोस मैंने बताया था, आईएससी स्टूडेंट्स कॉल सिनेरियो के थ्रू करेंगे, सीबीएसई स्टूडेंट्स कॉल सिनेरियो की जगह क्या लिख देंगे, जो भी कॉल उस शेयर होल्डर ने पे नहीं करी थी, कॉल और अलॉटमेंट मनी व्हाटएवर. देन टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमेशा वो अमाउंट जाता है जो कि शेयर होल्डर ने पे कर दिया है ऑलरेडी. मतलब अगर सिर्फ उसने एप्लीकेशन की मनी पे करी है तो अलॉन्ग विद एप्लीकेशन व्हाटएवर अमाउंट वाज पेड बाय हिम दैट विल कम, एंड इन शेयर
whatever calls in call allotment and various calls, first call, second call, उस सब में वो अमाउंट आ जाएगा जो उसने पे नहीं किया। जो बच्चे कॉल्स इन अरियर्स के थ्रू करेंगे वो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को यहाँ पर आके क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हमने एंट्री करना सीखा था। आज हम लोग वैसे ही फर्दर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। यू नीड नॉट टू कॉपी दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द क्लासरूम। ओके, सो लेट अस गो हियर, लेट मी ओपन इट। Let's read the question first and we'll try to understand from here. Himalaya Company Limited issued for public subscription how many shares? 1,20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. 2 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे हाउ मच मनी इज बीइंग कॉल्ड 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज। सो ये 5 रुपीज कैसा है? 3 प्लस 2 होगा, ठीक है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस, जब भी क्वेश्चन इज साइलेंट, इट डजंट से वेयर प्रीमियम मनी इज बीइंग आस्क्ड, इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी अलॉन्ग विद प्रीमियम। यहाँ पे साइलेंट नहीं है क्वेश्चन, एक्चुअली यहाँ पे बोल रहा है, देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है। तो ये कैसे है? दिस अमाउंट इज एक्चुअली 3 plus 2, ठीक है। यहाँ पर जो अमाउंट है, दिस इज 3 rupees will go to share capital and 2 rupees is going to security premium reserve, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट कॉल 2 rupees एंड यहाँ पर भी 2 rupees। उसके बाद बोलता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है? व्हाट इज इट? मैम ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, बिकॉज 40,000 से एक्सेस में आ गई है हमारे पास एप्लीकेशन। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। सो ये जो पैसा एक्सेस में आया था 40,000 शेयर्स के लिए, व्हाट वी डिड इट, वी एडजस्टेड इट अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। इसमें से एक शेयर होल्डर था रोहन, to whom 4,800 shares were allotted, failed to pay for the 2 calls। ये दोनों कॉल उसने पे नहीं किया। Shares were subsequently forfeited after the second call was made. All the shares forfeited were reissued to Tina। reissue का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं, इसी क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगी आपको मैं। As fully paid at rupees 7 per share. Record the journal entries and show the transactions relating to the share capital in the company's balance sheet। हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ में आपको बैलेंस शीट ना कराऊं, बिकॉज बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन के साथ नहीं बनाया, बताया आपको। लेकिन जनरल एंट्रीज फॉर श्योर वी विल लर्न फ्रॉम हियर। एंड जो कॉन्सेप्ट हमको सीखना है आज, री इशू का, फोर फीचर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ से, एंड री इशू का नया कॉन्सेप्ट भी हम इसके साथ साथ ही सीखेंगे, ठीक है। सो you all make the form। ये क्वेश्चन आपने अपलोड किया है क्लासरूम पे? क्लासरूम पे है ऑलरेडी, यू डोंट हैव टू टेक। एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ओनली, ठीक है। आप लोगों के पास, सबके पास बुक नहीं थी इसीलिए मैंने नहीं दिया। दिस इज लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, हाँ मैम, लास्ट ईयर के एडिशन का क्वेश्चन नंबर ये बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर भी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77 है, बट लास्ट ईयर के एडिशन का। तो अगर आप अपनी बुक में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। चलिए, we are solving this question, you will all make the। इस क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो टेबल ना बनाए ऐसा भी चल सकता है, बिकॉज एक ही क्लास ऑफ शेयर है। फिर भी मैं टेबल बना के बता रही हूँ। आई एम टेलिंग यू कि कैसे करना है एग्जाम में। जहाँ पे एक ही क्लास ऑफ शेयर होगा वहां पे टेबल बनाना कैन बी स्किप्ड, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। लेकिन अभी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज बेटर इफ वी मेक द टेबल। सो लेट्स मेक द टेबल फर्स्ट।
ये हम एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं, जहां पे फर्स्ट कॉलम होगा नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड, देन अलॉटेड, उसके बाद होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एक्सेस मनी, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एंड लास्ट कॉलम एज अ प्रैक्टिस हम बना लेंगे, हालांकि दिस इज टू बी नॉट टू बी डेल्ट विद इन दिस क्वेश्चन, रिफंड, क्योंकि कुछ भी रिफंड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, यहाँ मैं लिख रही हूँ अलॉटेड, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, excess money received, adjusted towards allotment, और ये है रिफंड, जो कि आप छोटा सा कॉलम बना सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू कम ओवर हियर, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? हमारे पास एप्लीकेशंस जो आई हैं वो है 1,60,000 एप्लीकेशंस, ठीक है। और हमने अलॉट कितने नंबर ऑफ शेयर्स को किया? 1,20,000 शेयर्स को अलॉट किया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे विद द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जरा देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी इज दिस, हाउ मच इट इज? 3 rupees per share, ठीक है। सो 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो कितना हो जाएगा? 3,60,000 rupees we have received, not sorry 120 नहीं 160, एप्लीकेशन तो आई है 160 के लिए। 160 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4,80,000 rupees। आर वी क्लियर विद दिस? यस। चलो, यहाँ 360 आएगा। 360 कैसे आया? इसको हमने 120 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और 3 rupees मल्टीप्लाइड विद 120। एक्सेस मनी कितनी हो गई है? एक्सेस मनी हमको जो मिली है दैट इज 1,20,000 rupees, ठीक है। अब हमको इसी मनी को एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट के टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने अलॉट किए, कितने अलॉट किए हैं? ये वाले 1,20,000 को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अलॉटमेंट मनी से। 5 rupees है अलॉटमेंट मनी, 6 लाख rupees होता है। क्या 6 लाख के अगेंस्ट 120 एडजस्ट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। 120 तो बहुत छोटा है, 6 लाख से हो जाएगा। तो इसी को, इस अमाउंट को यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,20,000 rupees। रिफंड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज सारा मनी जो है यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो बस इतना सा ही टेबल है। यहाँ पे टेबल ना भी बनाते तो काम चलता, बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ चीज का टोटल लगा के लिख देते हैं, विच विल कम सेम ओनली 120, 480, 360। यहाँ से हम जनरल एंट्रीज में डाल देंगे सारे अमाउंट्स, 120 एंड 120, ठीक है। एंड हियर नथिंग। चलो, नाउ लेट अस गो टू next page and pass journal entries. Ma'am, can you show previous slide once? Yes, 1 minute. Yeah. Yes, I'm done. चलिए, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फॉर्मेट बना करके करेंगे। हम लोग नरेशन नहीं लिख रहे हैं, बट आपको नरेशन भी लिखना है, अदरवाइज योर मार्क्स विल गेट डिडक्टेड। इसलिए नरेशन लिखने की प्रैक्टिस रखनी है। चलिए, फर्स्ट जर्नल एंट्री जो पास होगी दैट इज गोइंग टू बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, ये देखो, ये वाला अमाउंट 4,80,000 रुपीज, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी, 1,60,000 के लिए आई थी। तो 4,80,000 का अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे, 4,80,000 रुपीज। देन सेकेंड एंट्री जो होगी दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले एंट्री पास कर लेते हैं, देन विल पुट द अमाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों मैं शेयर अलॉटमेंट लिख रही हूँ, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट पे इस यहाँ का जो एक्स्ट्रा मनी है वो एडजस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये तो 4,80,000 ही आएगा अमाउंट, ठीक है। इसमें से ये देखो प्रीवियस टेबल में जाके देखते हैं, 360 तो कैपिटल में ट्रांसफर करना है, 120 आगे एडजस्ट करना है। तो यहाँ लिख लेंगे 3,60,000 और यहाँ लिख लेंगे 1,20,000, ठीक है। दिस वे वी विल पास दिस जर्नल। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन एंड अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट्स, ध्यान से करना पास, यहाँ पे प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पूरा ही लिखती हूँ, नहीं तो मेरे देखा रखे तुम लोग भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर कौन सा फिगर डालना है, 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 1,20,000 को। अब 1,60,000 का जो भी काम था वो ऊपर वाले एंट्रीज में खत्म हो गया। 1,60,000 के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे, अब हमें सिर्फ अलॉटेड पे ध्यान देना है। हमारे पास 1,20,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 6 लाख रुपीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लू कलर के पेन से लिख देती हूँ कि ये जो अमाउंट आया है वो कैसे आया है, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज का अमाउंट जो है वो ड्यू है ऑन अलॉटमेंट। इसमें से इस 5 रुपीज में से जो 2 रुपीज है दैट बिलोंग्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सो 2,40,000 यहाँ पर आएगा। और 3 रुपीज जो है, 3 रुपीज बिलोंग्स टू शेयर कैपिटल, तो 360 का अमाउंट जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपके पास जगह है तो आप इसके ऊपर ही लिखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये अमाउंट और ये अमाउंट कैसे आया। 1,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये अमाउंट आया है, और ये अमाउंट आया है 1,20,000 को, ये 3 है, अच्छे से बना देते थोड़ा, तो समझ नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके ये अमाउंट आया है, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पेज में जाऊं, सबने लिख लिया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पेज में जाते हैं और एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री पास कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी, वो हमें बैंक वाली एंट्री पास करनी है, ठीक है। बैंक में अब जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली विल नॉट गेट द फुल अमाउंट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पर 6 लाख रुपीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस 6 लाख रुपीज में से ऑलरेडी 120 यहाँ पर रिसीव हो चुका है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि 6 लाख माइनस 1.2 लाख करके जो अमाउंट आएगा वो वाला अमाउंट उधर जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा इधर लिख देती हूँ, 6 लाख माइनस 1.20, ये पॉइंट है, हाँ, 1.20 लाख करके जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट, मतलब कि 420 का अमाउंट, यहाँ 480 का अमाउंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1,20,000 रुपीज यू हैड रिसीव्ड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड उसको यहाँ पर एडजस्ट है। आर वी क्लियर टिल हियर? Yes, no? Yes ma'am. Now share first call account debit to share
कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज ड्यू है, ठीक है। ड्यू की एंट्री में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू के बाद रिसीविंग की जब एंट्री है वहां पर प्रॉब्लम है, बिकॉज वहां पर एक राजू ने, क्या नाम है इसका, राजू ने, और इस रोहन ने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर काम किया वही कर लेते, ब्लू पेन से लिख लेते, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये वाली एंट्री जब पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मैं यहाँ पर पूरा अमाउंट नहीं लिख सकती, क्यों नहीं लिख सकती? एक आदमी है जिसने की रमन, जिसका नाम है रोहन, उसने 4800 शेयर्स है उसके पास, एंड उसने हमें ये फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिए है, मतलब कॉल से अरियर्स हो गया। आईएससी के स्टूडेंट्स ये एंट्री नोट नहीं करेंगे, ये जो एंट्री है दिस इज सीबीएसई के स्टूडेंट्स की एंट्री है, यहाँ पर मैं आईएससी की एंट्री पास करूंगी, ठीक है। वहां पर कॉल से अरियर्स आएगा। आप लोग क्या करेंगे, सीबीएसई के स्टूडेंट्स, आप लोग का जो नंबर ऑफ शेयर्स है 1,20,000 शेयर्स है, ठीक है। 1,20,000 शेयर्स में से तुम पहले 4800 शेयर्स को माइनस कर दोगे, ठीक है। 4800 शेयर किसके, जो रोहन के पास है, उनका 4800 शेयर है। तो मेरे पास कितने शेयर बचे, 1,15,200 शेयर्स बचे हुए हैं, ठीक है। 120 में से मैंने 4800 इसके शेयर्स माइनस कर दिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी कितने से, 2 रुपीज से, और वो वाली अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो ये जो रमन के शेयर, अरे क्या नाम है इसका यार, इसका नाम है रोहन, इसके शेयर्स को हमने एडजस्ट कर लिया कि इसने ये नहीं दिया है। वेरएस आईएससी के स्टूडेंट्स को कॉल सिम एरियर्स के थ्रू ये एंट्री पास करनी होती है, यहाँ पर तो जगह नहीं बची, हम लोग नेक्स्ट पेज में जाके इसको पास कर लेते हैं। आर वी ऑल डन टिल हियर? कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. Done. चलो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं और मैं एंट्री पास कर रही हूँ। ये वाली जो एंट्री है ये आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए एंट्री है, कॉल इन अरियर्स के साथ। आप जो एंट्री पास करेंगे, आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर्स डेबिट। कॉल इन अरियर्स का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इट्स अ लॉस फॉर कंपनी टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये लोग पूरा अमाउंट डाल देंगे जितना ड्यू था। कितना ड्यू था ये देखो, 2,40,000 ड्यू था, ये 2,40,000 ही आप यहाँ लिख देंगे। और क्या करेंगे, 4800 शेयर जो कि रोहन के पास थे, उसको जो उसने नहीं दिया, 9600 रुपीज ही डिड नॉट पे, उसको आप यहाँ लिख देंगे कि इतने का लॉस हो गया। और जो बैलेंसिंग फिगर है 230,400 उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और सीबीएसई वाले स्टूडेंट ने पूरी एंट्री ही पास करी थी इस अमाउंट के साथ, बस इतना सा ही डिफरेंस है। क्या हुआ, इसके बाद सेकंड कॉल आ गई, कंपनी ने इसके शेयर्स को भी फोरफीट नहीं किया, सेकंड कॉल की बाद फोरफीट किया, तो सेकंड कॉल की एंट्री भी पास कर देते हैं। सेकंड कॉल की एंट्री जो होगी वो है शेयर, सेकंड बोलो या फाइनल बोलो, या सेकंड एंड फाइनल, जो क्वेश्चन ने वर्डिंग यूज करी है वही वर्ड यूज कर देते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो सेम ही है, 2 रुपीज की है ये वाली कॉल भी, तो 2,40,000 रुपीज आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सिमिलर एंट्रीज विल बी पास हियर आल्सो, क्योंकि अमाउंट इज सेम, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल दोनों का ही अमाउंट सेम है, इसीलिए एंट्री भी सेम ही पास होगी। ये जो एंट्री है वो है सीबीएसई स्टूडेंट की एंट्री, इसके बाद आईएससी की पास करेंगे। सीबीएसई स्टूडेंट जो एंट्री पास करेंगे, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड
फाइनल कॉल। अमाउंट सेम ही होएगा ना? सेम सेम, क्योंकि एक ही अमाउंट है ना, कॉल का ड्यू अमाउंट जो है वो सेम ही है। ठीक है, ये 3 है। हाँ, यू हैव एनी डाउट? 230,400। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? यस नो? यस मैम। यस, या ISC की एंट्री पास कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये एंट्री पास होगी, सेम सेम टू सेम जो एंट्री आपने पास करी है फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन arrears account debit to share second and final call account debit, not debit, share second and final call। यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000 रुपीज, यहाँ आ जाएगा 9,600 रुपीज एंड 23 कितना था वो 230,400। ठीक है, नाउ हम इसके शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, कॉल से अरियर्स की एंट्री हो गया, सब कुछ हो गया। अब शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, पता नहीं कितने बच्चे सिंसियरली रिवाइज कर रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, तो आप प्लीज पेन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप सुनो, सिर्फ देखो हाउ आई एम पासिंग द एंट्री फॉरफीचर का, क्योंकि आपको कोई होमवर्क नहीं मिला था, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। क्लास में पढ़ा जरूर था, लेकिन क्लास में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो यू आर नॉट डूइंग ऑन योर ओन। जब तक कि खुद से नहीं पढ़ते तब तक हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आप प्लीज देख लीजिए कि मैं कैसे एंट्री पास करी। शेयर्स जब भी फॉरफीट होते हैं, दिस एंट्री इज पास। ये जो पहली एंट्री लिख रही हूँ, दिस इज फॉर ISC। इसके बाद यहाँ पर CBSE के लिए एंट्री पास होगी। ठीक है, जो पहली एंट्री लिख रही हूँ उसमें होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स, टू शेयर forfeiture अकाउंट। शेयर फॉरफीचर के सामने वो मनी जाती है जो कि इसने पे कर दी है। सो रोहन ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों की मनी पे कर चुका था। ठीक है, तो ही हैज पेड ऑल टुगेदर 3 रुपीज प्लस 5 रुपीज। ठीक है, इतना अमाउंट उसने हमको पे कर दिया है। बट एक बात याद रखना, जब भी प्रीमियम पे होगा तो यहाँ पर जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट आता है, ये देखो पहले मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक काम करती हूँ ऐसे बताती हूँ, फिर दिखाती हूँ तुमको कि एंट्री टैली होती है कि नहीं होती है। अभी के लिए तुम सोचो कि 3 रुपीज ये और 5, 3 + 5 कितना हो गया 8, 4800 शेयर्स इसके पास थे। 48 मल्टीप्लाइड बाय 5, 24,000 रुपीज यहाँ पर लिखना है हम लोगों को। ऊपर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो 4800 into 10, व्हाट इज द अमाउंट, 48,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? हाउ मच ही डिडंट गिव, ही डिडंट गिव 4 रुपीज, एम आई राइट? 4 रुपीज कैसे आया, 2 + 2, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का एंड 2 रुपीज सेकेंड कॉल का। ठीक है, तो यहाँ पर आया 19,200। अब जरा आप देखिए 19,200 एंड 24,000 को आप जब प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ये सही आएगा 4800 into 4। He didn't give this much of amount. Yes, 8 multiplied by 4800. Oh sorry, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। This is 38,400. 38,000 लिखना नहीं है अभी, सिर्फ सुनना है। हाँ, अब जब मैंने 38,400 और 19,200 को ऐड किया तो मेरा तो एंट्री ही टैली नहीं हो रहा है। करके देख रहे हैं आप लोग, आंसर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ना, इन दोनों को दूसरे कलर के पेन से लिख के बताती हूँ, इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं
19,200 और 38,500, मेरा आंसर आ रहा है 57,600। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं करेगा? क्यों मैच नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ना 5 रुपीज लिख लिया है। याद रखो कि ये 5 रुपीज एक्चुअली 5 नहीं है, ये है 3 + 2, जिसमें से 2 रुपीज शेयर कैपिटल को बिलोंग ही नहीं करता है। 2 रुपीज तो बिलोंग करता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, जिसका हमने अलग से अकाउंट बना के लिखा है। ये देखो, ये वाली एंट्री जो आपने पास करी है, अलॉटमेंट की एंट्री पास करी थी जहाँ पे, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये देखिए यहाँ पर आप अलग से लिख के बैठे। तो जब आप एप्लीकेशन कैपिटल को डेबिट कर रहे हो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल को डेबिट किया। तो कैपिटल को डेबिट करते टाइम कैपिटल की डेबिट में ये कैसे जा सकता है? 5 रुपीज नहीं जा सकता, मतलब कि 2 रुपीज तो इसके पास जा ही नहीं सकता, ओनली 3 रुपीज जा सकता है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? There's no problem if you are not getting. I'll explain again, but just say, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कुछ नहीं बोला तुम लोग को? आ रहा है। चलो, ये तो प्रेशर में आके इस लड़की ने बोल दिया आ रहा है, बाकी लोगों को इसका मतलब नहीं आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये अब बात याद रखो, यहाँ पर 3 रुपीज ही जाएगा, यहाँ पर 2 रुपीज नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 3 + 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, मतलब 6 रुपीज से जब हम 4800 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी एंट्री जो है ना वो टैली हो जाएगी। 4800 को मल्टीप्लाई 6 से किया तो यहाँ पर आंसर आएगा 28,800। 28,800 प्लस 19,200 किया तो 48,000 आ जाता है, तब एंट्री टैली हो जाती है। जिनको नहीं समझ में आया है प्लीज यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। प्रोसेस इट इन योर माइंड, take some time to understand, but do process it in your mind, understand, and then उसके बाद ही आगे बढ़ना है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट करूंगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो होता है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट होता है? जितना पैसा मिल गया है। अब हमको ये पता है कि कितना पैसा मिल गया। एक तो रोहन ने क्या दे दिया, एप्लीकेशन मनी दे दी है, और दूसरा दे दिया है अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर था 5 रुपीज, सॉरी यहाँ पर था 3 रुपीज और यहाँ पर था 5 रुपीज। अगर इन दोनों को ऐड करके 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दे 4800 रुपीज और ये अमाउंट यहाँ जाके लिख दे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो 5 रुपीज था ना, इस 5 रुपीज के अंदर क्या इंक्लूडेड था? इस 5 रुपीज के अंदर 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड था, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पूरा का पूरा ट्रीटमेंट अलग होता है। ये मनी मिल गई है और ट्रांसफर भी हो चुकी है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की, तो इसको यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि इसके डेबिट साइड में देखोगे, इस एंट्री के डेबिट साइड में तो देखो क्या लिखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा है? नहीं लिखा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड जो अमाउंट है उसको यहाँ लाना ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। वो सिर्फ तभी होता है जबकि ये बंदा SPR भी नहीं देता है। इसने तो दे दिया है, इसने अलॉटमेंट की मनी दे दी, इसका मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा ये दे चुका है, तो उसका हमें कुछ भी नहीं करना है, उसको उठा के अलग कर दो। तो मतलब यहाँ पर 3 + 5 नहीं करो, इसको कट करो, 3 + 3 करो। ठीक है, क्यों 3 + 3 करो? क्योंकि 2 रुपीज हटा दिया हमने जो कि SPR का था। जब हम 3 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इतना पैसा रिलेटेड टू शेयर कैपिटल इस बंदे ने दे दिया, बाकी का 4 रुपया नहीं पे किया। ये 4 रुपीज कैसे आया? 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 2 रुपीज फाइनल कॉल का। क्या अब तुम्हें समझ में आया? हाँ मैम। चलो एक काम करो, आप ना यहाँ पर ऐसा लिखो और उसके सामने ऐसा लगाओ, कट का निशान करो, सो दैट याद रहेगा। ठीक है, CBSE स्टूडेंट की एंट्री पास कर रही हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो मैंने कैलकुलेशंस लिखे हैं आप ऊपर से वैसे ही कॉपी कर लेंगे। 48,000 के सामने जो कैलकुलेशन लिखा है ना ब्रैकेट में, वो आप वैसे ही कॉपी कर लेंगे। सिर्फ आप यहाँ पर आपके पास आएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल and 2
शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में तो वही अमाउंट आएगा 28,800, यहाँ पर आएगा 9600 और यहाँ पर भी 9600। ठीक है, दिस इज योर एंट्री। प्लीज दोज हु हैड नॉट रिटर्न अर्लियर अभी लिखो, अच्छे से समझो और पूरी तरह से इसका कैलकुलेशंस भी करके देखो, खुद से करके देखो कि कैसे कैसे ये अमाउंट आ रहा है, थोड़ा क्लिक करके देखो, बट डू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग आस्क मी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। ठीक है, आप ये बात मेरे से 15 दिन बाद 20 दिन बाद पूछोगे कि मैम वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा दो ना, तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे टाइम दे करके आपको समझाया है यहाँ पे। तो आप प्लीज अभी के अभी इसको क्लियर करिए। Done, ma'am. All have noted? Yes, ma'am. Noted, ma'am. ओके, चलिए अब हमको क्या करना है, फॉरफीचर की एंट्री करनी है। फॉरफीचर की एंट्री, सॉरी फॉरफीचर की तो होगी, इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री हमको, हे भगवान क्या बोलते हैं, री इश्यू की एंट्री है। चलो इसको पहले सुनना समझना, उसके बाद ही लिखना। जब भी शेयर्स को री इश्यू किया जाता है, ठीक है, री इश्यू की एंट्री में सिर्फ समझा रही हूँ अभी आपको कि एंट्री कैसे पास होती है। ऑब्वियसली री इश्यू करोगे तो पैसा आएगा ही। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब पहली बार कंपनी शेयर इश्यू कर रही थी, जिसमें 1,60,000 की एप्लीकेशन आई थी, तो इसमें पूरे 1,20,000 शेयर्स इशू किए थे एंड बहुत सारी पब्लिक ने अप्लाई किया था एंड देन शेयर्स वर इशू। ये एक बीच में से रोहन ने ऐसा कर दिया कि शेयर्स का पैसा नहीं दिया तो इसके शेयर्स फॉरफीट करके फिर कंपनी ने इशू किए। तो कंपनी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा किसको, और शेयर्स उसको इश्यू करेगी। तो ऑब्वियसली कंपनी दोबारा से प्रोस्पेक्टस निकाल के इतना सब खर्चा नहीं करेगी, ऑल द प्रोपेगेंडा विल नॉट बी डन। सो कंपनी को हो सकता है कि बहुत अच्छे बायर्स ना मिले, ठीक है, और क्योंकि बल्क नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं, थोड़े से ही शेयर्स है, तो हो सकता है कंपनी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े और वो शेयर थोड़े सस्ते में बेचने पड़े। तब कंपनी क्या करेगी, ऑब्वियसली जितने का शेयर्स है उससे कम पर तो नहीं बेच सकते, लेकिन इसको एक फायदा हो चुका है ऑलरेडी। क्या फायदा हो चुका है, देखो 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, प्लस 2 का शेयर था, 12 रुपए का शेयर था। ठीक है, अभी ये वाले अमाउंट को भूल जाओ, ये तो रिसीव हो ही गया था। इस 10 रुपीज में से हमने बोला कि 6 रुपए तो आ ही गया था ना। 6 रुपए कैसे आ गया था, एक तो इसने 3 रुपीज एप्लीकेशन का दे दिया था एंड 3 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दे दिया था। 3 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से इश्यू वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट हटा दिया। 6 रुपए तो कंपनी की पॉकेट में पड़े हैं अभी। ठीक है, आगे अगर किसी को कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो अगर थोड़े कम में भी इशू कर दिए, फॉर एग्जांपल 9 रुपीज में भी इशू कर दिए कंपनी ने किसी को ये शेयर्स, तो कंपनी को नुकसान थोड़ी ना हुआ, ये तो प्रॉफिट ऑलरेडी हो ही चुका है ना। ये वाले अमाउंट को अब आप रोहन को वापस तो करने नहीं वाले, ये तो कॉन्फिस्केट हो गया, ये वाली मनी उसे वापस नहीं मिलेगी, ये तो कंपनी की पॉकेट में जा ही चुका है। मतलब कि अगर यहाँ पे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा कंपनी को तो वो यहाँ से एडजस्ट हो सकता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? Yes, ma'am. लेकिन कितना मैक्सिमम नुकसान उठा सकती है कंपनी, इतना ही मैक्सिमम नुकसान उठा सकती है।
₹10 में से ₹6 पहले कंपनी को मिल गए थे, अब आगे 10 के भाव पे खरीदने के लिए कोई मिल नहीं रहा है कंपनी को, तो कंपनी मैक्सिमम कितने का नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाएगी? इतने का। क्यों? क्योंकि इसको पहले ही मिल चुका था, तो बोलेगी चलो ठीक है हम एडजस्ट कर देंगे, बट ₹4 से नीचे पे तो कंपनी शेयर नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान उठा के कंपनी शेयर बेचेगी तो मतलब कि कंपनी क्या फेस वैल्यू से भी नीचे शेयर बेच दे, वो तो अलाउड ही नहीं है, नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कंपनी कितना बेयर कर सकती है? ये ₹6 का लॉस बेयर कर सकती है। रीजन बीइंग ₹6 पहले से ही इसके पॉकेट में आ गया था, तो इतने का लॉस बेयर कर लेगी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि आगे जब कंपनी किसी को शेयर्स इशू करेगी और अगर वो थोड़े कम में मतलब डिस्काउंट पे इशू करना पड़ा, तो जो भी लॉस होएगा वो कहाँ से मेक गुड किया जा सकता है? ये जो अमाउंट आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, उससे आप उसको एडजस्ट करके वहां से आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब Yes, इसकी एंट्री जो है वो कैसे पास होती है? एंट्री ऐसे पास होती है, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हो, ठीक है, और शेयर कैपिटल को, जिसको पहले आपने क्या किया था, डेबिट कर दिया था, अब उसको क्रेडिट करोगे टू शेयर कैपिटल। जितने अमाउंट पे शेयर इशू किया उतने अमाउंट पे आप इशू कर दोगे शेयर्स को। ठीक है, जितने अमाउंट पे इशू करोगे, फेस वैल्यू नॉर्मली होती, तो उतने अमाउंट पे आप इशू कर दोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, आगे शेयर्स किसको इशू किए गए? टीना को शेयर्स इशू किए गए, और कितने का किया गया वो वाली लाइन जरा आप क्वेश्चन में पढ़िए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो कि टीना को इशू किए शेयर्स, और ये टीना को शेयर्स इशू कितने पे किए? टीना को शेयर्स हमने इशू किए, इशू टू टीना एज फुल्ली पेड एट ₹7 पर शेयर। मतलब टीना मैडम ने तो ₹7 दिया, बाकी के ₹3 का क्या नुकसान हो गया, और इस नुकसान को कहाँ से मेक गुड करना पड़ेगा? वी विल हैव टू टेक इट फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा? जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10 मल्टीप्लाइड बाय 4800, पूरे शेयर इशू कर दिए, राइट? तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4800 किया, तो यहाँ पर तो 48,000 रुपीज चला गया, लेकिन यहाँ ऊपर 4800 इंटू 10 नहीं कर सकते, क्योंकि ₹7 पर इस शेयर को इश्यू करना पड़ा मजबूरी में, तो 4800 इंटू 7 कर रहे हैं, तो एंट्री तो टैली नहीं कर रही है, मतलब कि नुकसान हो रहा है, तो उसको कहाँ से ले? उसको ले लो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से। ठीक है, ये होता है बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर को ऐसे गोला लगा के लिखा है मैंने, 48,000 में से 33,600 को माइनस करेंगे, और आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पर आएगा, कितना है? 14,400। मैम अगर शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर तो फिर वो ना। आपकी आवाज क्रैक कर दी लीजिए, मुझे नहीं समझ में आया। अगर इसको हेलो, यस, नाउ से इट अगेन। if the shares weren't reissued, then what would be the last entry? If the shares are not reissued, then what will be the last लास्ट entry? एंट्री क्या होगी? बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, बस इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। दिस विल बी द लास्ट एंट्री डे, ठीक है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है। शेयर्स रीइश्यू किए, तो ये है रीइश्यू की एंट्री। मैम वो कैपिटल में कुछ ट्रांसफर होता है ना? हाँ, वो बताना है ना, अभी पहले इसको तो नोट करवा। चलिए, चलो, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये एंट्री तो हो गई, लेकिन आप जरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट की तरफ देखिए, ये आपको बनाना नहीं है,
चाहे तो बना लीजिए, समझिए पहले इसको क्या है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, देखो यहाँ पे सबसे पहली बार आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है, कितने अमाउंट से किया था, 28,800 से। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय शेयर कैपिटल था उसके ऑपोजिट में, ठीक है, डेबिट साइड में कैपिटल था, शेयर कैपिटल अकाउंट 28,800, और इस एंट्री में आपने इसको डेबिट कर दिया और इसके क्रेडिट साइड में जो लिखा है वो आप लिख दोगे टू शेयर कैपिटल। क्या ये अकाउंट क्लोज हो गया है या कुछ बैलेंस है? अरे इतना टाइम लग रहा है बोलने में। बैलेंस है कि क्लोज हो गया है? सर एक ही बच्चा जवाब देगा, सारे आंसर्स एक ही बच्चा करेगा, बाकी किसी को नहीं आता बोलना। ठीक है, मैं भी बैठी हूँ, जब तक कि आंसर नहीं आता मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। क्या ये अकाउंट क्लोज हो गया है या इस अकाउंट में कुछ बैलेंस बाकी है? balance is left. बैलेंस इज लेफ्ट। कितना बैलेंस लेफ्ट है? अभी भी बच्चे लोग जवाब नहीं दे रहे। आप लोग क्या कैसे बैठे हुए हैं क्लास में चुपचाप से? चलो भजन सुनते हैं। हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, so at least you can answer. It is not possible. Balance is left. It is not possible that everyone's mic is not working. I can understand if some people say that, and if some people are repeatedly saying that my mic is not working. Now everything is open. You can go get your systems corrected. जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कराइए। बार बार एक ही तरह का एक्सक्यूज देते रहना। यहाँ देखिए अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, अकाउंट में फिर भी बैलेंस बचा हुआ है, एंड नाउ ऑल द कॉल्स आर बीइंग मेड, देन व्हाट हैज टू बी डन? यहाँ पर आपको इस अकाउंट का बैलेंस किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या ऐसा काम है जो कंपनी रोज करती है कि चलो डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं और बोलते हैं चलो आज इतने लोगों के शेयर्स फॉरफीट कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, कंपनी का बिजनेस ये थोड़ी कि लोगों के शेयर्स फॉरफीट करते बैठे। वो लोग तो शेयर्स इशू कर देते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए मनी रेज करिए दे आर हैंडलिंग दैट। ये बीच बीच में कुछ लोग गड़बड़िया कर देते हैं, इसलिए उनका शेयर जो है फॉरफीट कर लेते हैं और पैसा मिल जाता है। So this is something which is not happening on the regular basis. So, and this is some profit company has made out of the blue. So this is called capital profit. एंड जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि आपने सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट कर दिया और उसको सेल करते टाइम आपकी जो बुक वैल्यू थी उससे ज्यादा का आपका सेलिंग प्राइस आया, तो आप क्या करते हो, उसको आप ट्रांसफर बुक कर लेते हो एज अ कैपिटल प्रॉफिट। सिमिलर एडजस्टमेंट विल बी डन ओवर हियर। इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करेंगे और एक रिजर्व है विच इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। तो जो बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, 28,800 था शेयर कैपिटल में, यहाँ पर फॉरफीचर में उसमें से हाफ द अमाउंट इज बीइंग यूटिलाइज्ड व्हाइल इशूइंग द शेयर्स टू मिस टीना। नाउ रिमेनिंग अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट आपको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये अकाउंट आप बना लेंगे, दिस इज अ वर्किंग नोट ऑफ काइंड ऑफ थिंग जो आपको बनाना नहीं है। आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, जो बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं दे विल डू इट ऑन कैलकुलेटर, छोटा सा वर्किंग नोट बताएंगे। सीबीएसई स्टूडेंट्स यू विल आल्सो शो लिटिल वर्किंग नोट कि ये कैसे आए। वर्किंग नोट नहीं बनाना है तो जैसे हम ये ब्रैकेट में लिख के बता रहे हैं ना, बस ऐसे ही ब्रैकेट में लिख के आप बता देंगे। लेकिन फॉर नाउ यू विल मेक दिस अकाउंट सो दैट, क्योंकि कभी कभी शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आईसी स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत बार पूछा जा चुका है अकाउंट बनाने के लिए, तो यू विल नो कि कैसे अकाउंट बनाना है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ये वाला अकाउंट बना लेंगे और फिर मैं लास्ट एंट्री पास करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, लास्ट एंट्री यहीं पर मैं ये थोड़ा लेफ्ट साइड में पास कर देती हूँ, तो आप ये वाला अकाउंट बना लीजिए और साथ साथ में एंट्री भी पास कर लीजिए।
Done, ma'am. Have you all noted down? Done, ma'am. Yeah, so in this question, I'm trying to skip the, I'm skipping the balance sheet part because I will explain that later on. छोटा सा ये बहुत कुछ खास नहीं है इसमें. So we will be doing one more question just like this, which you people will do. ठीक है? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देती हूँ. छोटा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 11 तक किया था क्या हमने लास्ट क्लास में? Ma'am, 12 तक. Ma'am, yeah, 12. Yeah, so this is 13th question. You will write. मैं एक बार read कर देती हूँ because question will spread over to next page also. I'll try to make some adjustments here only in that. See, ABC Limited issued 12,000 shares. Applications came for 10,000 shares. Amount was payable as follows: rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 2.5 on first call, rupees 2.5 on final call. Mr. A, to whom 500 shares were allotted, failed to pay any amount after application. His shares were forfeited after final call. इसके बाद का जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सही है. Later on, his shares were issued as fully paid for rupees 9 to Miss B. Past journal entries. ठीक है? Copy it fast and you will start solving this question. I am giving you 5 minutes
Within 5 minutes, you should be able to solve these questions. All the journal entries you should be able to pass. ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. इनफैक्ट उससे इजी है. प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीमियम भी इन्वॉल्व था. यहाँ पर किसी तरह का प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है, चलिए, you all can start doing it. Have you all noted down? Yes, ma'am. Ma'am, वो हमने reissued लिखा ना? कहाँ पर? यहाँ पर later on his shares were reissued. Yes, this is reissued as fully paid for ₹9 to Miss B, past journal entries. I will pause sharing for some time, and meanwhile I'll solve my answer so that I can show it to you all later. Let's see the answers. First is bank account debit to share application. Everything will be multiplied with 10,000 number of shares because the under subscription was there in this question. Company had asked people to apply for 12,000 shares, but the applications came for only 10,000 shares. So multiplied by 10. Then share application account debit to share capital. This money will be transferred. After this, share allotment account debit to share capital, 30,000 rupees, since the amount of allotment was 3 rupees per share. Till here, everything was clear, was correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now going to the next question, next entry, bank account debit to share allotment. Because here, Mr. A, who had 500 shares, he could not pay allotment money. So allotment money will not be received by this person. So what will be the entry? This entry is for, first entry is for CBSE, bank account debit to share allotment account, and ISC students will do the entry bank account debit to calls in arrears account debit to share allotment. 3 multiplied by 500, 1,500 rupees is calls in arrears. Then after that, first call gets due. First call is for 2.5 rupees. 2.5 multiplied by 10,000, 25,000. Then bank account debit to share first call. This entry is for CBSE student. The first entry, bank account debit to share first call. So here 1,500 rupees, not 1,500 rupees, 1,250 rupees. 500 multiplied by 2.5, 1,250 rupees will be deducted. Second entry, this entry is for ISC student. It will be bank account debit, calls in arrears account debit to share first and final call account. I'm pausing here for some time. If any of you have made any mistakes, you can copy it down from here, and if you want me to take back to the last screen, you can take. Yes, have you all done? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. So I'll take you all to the next screen. Now here, sorry, where will be? He was here, no? Now, final call. Final call also the same entry will be passed. This is bank account debit to share final call. CBSE students का entry है ये. ISC students will pass the same entry. कौन सी वाली? ये वाली entry. Same, बिल्कुल as it is entry you will pass since the amount is same. ठीक है? CBSE students का entry लिखा हुआ है. ISC students will copy this entry. Am I clear? If you have not done it, please do it. Now going to the next entry, that is
forfeiture of shares. Okay, now forfeiture of shares, share capital will be debited, share capital will be debited with the amount called up. पूरा 10 rupees बुला लिया है, so 500 multiplied by 10. यहाँ पर इस एंट्री की जगह CBSE वाले स्टूडेंट्स को 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. टू share allotment, to share first call, and to share final call. It will be 1500 rupees here and 1250 and 1250 each over here. Okay, so this you will pay, you will make change here. And share forfeiture, how much he has paid? 500 multiplied by 2. Only first call money was paid, application money was paid by him. And this, how come it is coming? 500 multiplied by the face value of share, that is 10 rupees. Now going to the reissue entry. When you reissued for 9 rupees. Okay, so this is issue to Miss B, 500 multiplied by 9. This is coming 500 multiplied by 1 rupees का जो discount दिया था, and this is 500 multiplied by 10. Are we all clear with this? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. last entry will be transfer to capital reserve. Now, what will be the transfer to capital reserve? Share forfeiture account will be debited with the balance. Initially, देखो 1000 rupees गया था, ये रहा share forfeiture में 1000 rupees was there, and 1000 में से 500 आपने यहाँ पर utilize कर लिया, तो remaining amount कितना है? 500 यहाँ पर आएगा. ठीक है? So this way you have passed the entry. ठीक है? Is this clear? Yes, ma'am. One more question I am giving, where you will have to do the similar practice. कुछ clear हो रहा है अभी? ये issue और reissue, देखो सबसे मुश्किल पार्ट में से एक पार्ट ये है शेयर फॉरफीचर में से जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है. मैक्सिमम गड़बड़ी यहीं पर आकर बच्चे करते हैं. ठीक है, ये दोनों एंट्री में आपको सिंपल फॉरफीचर भी विद प्रैक्टिस आ जाएगा, लेकिन इसको करने में गड़बड़ी होती है. किस बच्चे की गड़बड़ी होती है? जो सिर्फ ऊपर से देख के क्वेश्चन जाता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, वही बच्चों की यहाँ पे गड़बड़ी होती है. अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन आई विल राइट. ईशान, यू आर सेंडिंग मी मैसेजेस दैट योर स्क्रीन got stuck, screen sharing नहीं हो रही है, तो बेटा you all will copy. This is our question number 14, right? Yes, ma'am. A Limited issued 50,000 shares issued, invited होना चाहिए था, invited application for 50,000 shares and applications came for same number. Amount was payable as follows.
₹5 on application. ₹3 on allotment and ₹2 on first and final word. All the money due received except for Mrs. X holding 300 shares who failed to pay allotment money and her shares were immediately forfeited. Later on, these shares were reissued as rupees. Shall I go to the next screen? मैम आपने वो क्या लिखा है? होल्डिंग 300 शेयर हु Failed to pay allotment money and her shares were immediately forfeited. Later on, the shares were reissued as, down next page पे, यस मैम as rupees 10 as fully paid. Past general entries. ठीक है? Anybody want me to take on the previous screen? किसी का कुछ लिखना छूट गया है? Yes, ma'am. देखिए, those who have already noted, they can start writing, start solving the question. Shall I take you to the next screen? Yes, ma'am. Yes, let us see the answer. First entry is very simple. 50,000 multiplied by 5. यहाँ पर 50,000 shares थे and amount on application was 5 rupees. So this 2,50,000, I hope everybody would have got clear, correct answer over there. Then मैम हम आप आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहे शेयर हो? नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा। oh sorry, I forgot to screen share. This is the first entry, bank account debit to share application account, that is 2,50,000, 50,000 multiplied by 5. Then same amount is transferred to share capital. ठीक है? These two entries are correct, I hope. सबने ठीक किया होगा. यस मैम Going to the next one, share allotment. Share allotment पे जो money due थी, that was 3 rupees. 50,000 multiplied by 3. लेकिन share allotment money पूरी रिसीव नहीं हुई. एक जो 300 शेयर्स थे वहां पर क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स हो गया. तो सीबीएसई स्टूडेंट्स ने कॉल्स इन अरियर्स ना लिखेंगे और सीधा दोनों एंट्री 1,49,100 से पास करेंगे. ये कॉल्स इन अरियर्स कैसे आया है? 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने से आया. 3 3 9 ऐसे आया. ठीक है. Immediately after this call only
क्या हुआ था, इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया था। कौन था ये? जो भी पर्सन था मिसेस एक्स, उसकी शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर दिस वर फोरफीटेड। तो ऑब्वियसली यहाँ तक शेयर कैपिटल पूरी बुलाई नहीं गई थी। 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन बुलाया गया था एंड 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट बुलाया गया था, मतलब टोटल 8 रुपीज ही बुलाए गए थे। दैट इज वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से होगा, 8 से 10 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर उसको ठीक कर लेना। 300 मल्टीप्लाइड बाई 8 किया, 2400 यहाँ आएगा। शेयर फॉरफीचर मतलब उसने कितना पैसा दे दिया, 1500 रुपीज। कैसे आया ये? 300 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज क्या था, ये था अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। कॉल्स इन अरियर्स की जगह सीबीएसई स्टूडेंट लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये अमाउंट कैसे आया, 300 मल्टीप्लाइड बाय 3, इतना उसने पैसा दिया नहीं था। Is this clear? यहाँ तक क्या सबकी एंट्रीज ठीक आई है? और you want me to pause here for some time and you want to note down? Yes, ma'am. Please pause. Noted? Yes, ma'am. Now going to the next entry, which is final call. एक ही call की share first and final call because Mrs. X's shares are being already forfeited. Now 50,000 minus 300, number of shares बचे हैं 49,700. तो ड्यू की एंट्री भी 49,700 शेयर्स के साथ ही होगी। 49,700 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 99,400। यहाँ पर कोई भी डिफॉल्टी नहीं था, ऑल ऑफ देम पेड द मनी। सो यहाँ पर 99,400 रुपीज यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो ये दोनों एंट्री भी आई होप आप लोगों ने पास कर लिया होगा। बस ये बात याद रखना, यहाँ पर 50,000 नहीं आएगा। हो सकता है किसी ने मिस्टेक करी हो और 50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको ठीक कर लीजिए। I've missed one mistake. I have all my entries correct, but I have reissued it for the call वाली entry. हाँ ठीक है, वैसा किया है तो चलेगा। जो फ्लो मैम तो मार्क्स नहीं होंगे? नहीं मार्क्स कट नहीं होंगे। नॉर्मल जो फ्लो है उसमें पहले एक्चुअली इसका, लेकिन इतना आगे पीछे का कोई मार्क्स नहीं कटता है। दैट इज हार्डली एनी डिफरेंस है इसमें, मार्क्स कट नहीं होंगे इसमें। चलिए, इसके बाद क्या हुआ है, दीज शेयर्स आर रीइश्यूड। और देखो ये वाली लाइन जरा पढ़ के आते हैं, मैं क्वेश्चन में आपको वापस ले जाती हूँ। क्या लिखा है, लेटर ऑन दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज ₹10 एज फुल्ली पेड। 10 तो समझ में आ रहा है कि 10 रुपए बैंक में आएगा। एज फुल्ली पेड का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ देखिए ये जो एंट्री हमने पास करी थी फॉरफीचर की, फॉरफीचर करते टाइम हम लोगों ने 8 रुपीज से मल्टीप्लाई किया था शेयर कैपिटल के सामने। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसे रीइश्यू कर दो कि जैसे 10 रुपए मिल गया था, मतलब कि क्रेडिट कितने से करो, शेयर कैपिटल अकाउंट को आप 10 रुपीज से ही क्रेडिट करो। देखो ये वाली एंट्री के ऊपर ध्यान दो, ये है रीइश्यू की एंट्री। आपने 10 रुपीज के ऊपर इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 300 शेयर्स थे और 10 रुपीज पर शेयर रीइश्यू कर दिया। और यहाँ पर 300 इंटू 8 नहीं करना, ये मत सोचना कि जितने से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था उतने से ही क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन हमको क्लियरली बोल रहा है एज फुल्ली पेड रीइश्यू कर दो, मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 यहाँ पे भी करना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कंपनी को किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ इन शेयर्स को रीइश्यू करने में। पूरे के पूरे पैसे मिसेस एक्स से तो मिल ही गए। मिसेस एक्स ने कितना अमाउंट दे दिया था, मिसेस एक्स ने हमको 1500 रुपीज दे दिया था एप्लीकेशन पे, वो तो मिल ही गया। और जब आप रीइश्यू करने गए तो भी आपको वो उन शेयर्स के लिए 10 रुपीज ही दोबारा से मिल गए। तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये रीइश्यू वाली एंट्री में, मतलब नथिंग इज गिवन एज डिस्काउंट। तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया कंपनी का। एंड दिस फुल अमाउंट
is transferred to capital reserve, क्योंकि ये सारा का सारा क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो एंट्री है, ये लास्ट एंट्री, ये पूरा अमाउंट शेयर फॉरफीचर का कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि द एंटायर मनी इज अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर कंपनी, और वो पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को काफी समझ में आ गया है। अब अभी तक मैं बोल रही थी, मैं बार बार कोशिश करी कि होमवर्क दूं, लेकिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम गेटिंग इन द बुक, दे आर नॉट you know, the kind of questions which you can do. So I will be posting the homework today.